I hope screen or voice Yeah, proper है. Uh, to start with, I'll introduce you all to myself. I'm Sneha Singh, derivative research analyst at Ancient Cooking. So today we have a webinar on the topic option strategies. So we will cover a few strategies which you can do in different market scenarios. These are the basics one, but that works very well. So we'll quickly start with the first slide that talks about moneyness of the options. When we are doing option strategy, we know that it can be a one leg strategy, two leg strategy. So there are normally strikes are divided into three things. So there is something called at the money, in the money, and out of the money. So as per the moneyness of that option, as per the stop, what is the spot level, according to that, whether where is the strike, whether it is at the money, money means the strike which is closest to the spot level. So here we have an example. It says that spot Nifty of futures is at 18,300. So 18,300 strike becomes हेलो. at the money for both call and put option. Now, all these strike prices above 18,300, here that will be out of the money. Why? Because the strikes which are far from the spot, those are said out of the money. So at the money strike is only one, and it is same for both call and put option. Out of the money strikes and in the money strikes can be multiple. Like all the strike prices over here above 18,300 will be out of the money, and the strike prices which are making profits, for that matter, we can say 18,100. See, someone has bought 18,100 call, market is at 18,300, he is making profit of 200 points minimum. So that these strikes wherein we make profit, when we say that we are making profit, those strikes are called in the money. In case of put option, we all know that the overall view is bearish. So strike prices which is below 18,300, that becomes out of the money. Yeah, as a put buyer, you expect market to correct. And if someone has bought 18,100 put, market is at 18,300, then still there is 200 points, uh, which once we see Nifty going down towards 200 points, then only this site will make some profit. At this moment, it is far from the spot level, so it becomes out of the money. In case of and all the strike prices above 18,300 will become in the money in case of put option. There is it's a simple logic. The only thing is that you need to understand what is in the money, at the money, out of the money, बंद किधर रहा and according to the strike price, whether you're talking what kind of option you're talking, whether it is a call option or a put option, पानी साफ accordingly करना you है. should be taking the वेबिनार you'll get to कोऑर्डिनेटर understand what is in the money and out of the money. हाँ. Is the voice normal now? Like I have got some else said that the voice is not reachable. Uh, I hope everyone can hear me now. Hindi, please, ma'am. Okay, मैम ट्राई करूँगी कि मिक्स करूँ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट दोनों ही लैंग्वेजेस जिसको भी प्रेफरेबल है दे कैन अंडरस्टैंड. एनीथिंग एल्स बिफोर वी स्टार्ट वी गो अहेड विद द सेकंड स्लाइड. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है यू कैन पुट इट डाउन. I'll try to do it in Hindi, and I hope the voice is fine. Still, the voice is not reachable. At the money, someone is asking strikes which are close to the spot price. So strike price here, spot is at 18,300. So the closest strike becomes 18,300 here. So at the running strike is the strike wherein आपको जो आपका जो spot level है उसकी जो nearest strike होगी उसे कहेंगे at the money. जो स्ट्राइक्स में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे कहेंगे हम इन दी मनी. तो यहाँ पे इन दी मनी का स्ट्राइक कौन सा आएगा? 18,100 अगर आपने बाय किया है या 18,200 की कॉल ऑप्शन आपने बाय की है, दैट इज इन दी मनी स्ट्राइक्स, राइट? तो वो स्ट्राइक्स में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं. अगर मार्केट ऊपर है 18,300, आपने नीचे का कॉल ऑप्शन आपके पास है, तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो स्ट्राइक में. तो ऐसे ऐसे केसेस में उसे कहेंगे दैट इज द इन दी मनी स्ट्राइक. इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, अगर आपके पास 18,500 का पुट ऑप्शन है, मार्केट 18,300 पे चल रहा है, तो आप 200 पॉइंट्स इन दी मनी, तो उसे कहेंगे इन दी मनी स्ट्राइक. तो जो भी स्ट्राइक्स जो आपको प्रॉफिट दे रहा है उसे कहेंगे इन दी मनी स्ट्राइक्स. और जो स्ट्राइक प्राइस दूर है
from the spot level, that will be out of the money. So here 18,400, 18,500 becomes out of the money in case of call option, and 18,100, 18,200 becomes out of the money in case of put options. I hope ये clear है अभी. Coming to next slide, which talks about the first strategy, that is long call. अब हम पहली strategy देखेंगे जो कि long call है. Uh, लॉन्ग कॉल इज द बेसिक, लाइक आप अगर डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, और कभी भी आपको बहुत श्योर है कि आप कोई तेजी आने वाली है, या मार्केट में आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सपायरी तक, तो आप नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जहां पे आप सिर्फ एक ऑप्शन जो एट दी मनी हो गया या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी फॉर दैट मैटर, आप वो स्ट्राइक्स बाय करके ट्रेड करते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग कॉल. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. It says that Harish believes that the stock price of ABC Limited, which is currently quoting at 100, will increase in next few days. अब Harish is bullish on the counter ABC Limited, और वो उन्हें लग रहा है कि यहाँ से तेजी आ सकती है. तो rather than buying शेयर्स, और उन्होंने कैश में इक्विटीज बाय करने से ज्यादा प्रेफर किया कि वो ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि उनका व्यू ज्यादा लंबे अवधि का नहीं है. इट इज वेरी शॉर्ट टर्म. सो ही प्रेफर्स बाइंग अ कॉल ऑप्शन. 100 की स्ट्राइक उन्होंने बाय की है. उन्होंने एट दी मनी स्ट्राइक बाय की है यहाँ पे 100 की, जिसका प्रीमियम उन्होंने भरा है ₹3. तो ये कॉल ऑप्शन फिर अभी भी आपको कोई परचेज करना होता है तो आप प्रीमियम भरते हैं. बट यही आप राइटर हो, आप सेलर हो, तो आपको जो है मार्जिन मनी भरना पड़ता है व्हेन यू आर एन ऑप्शन राइटर. दैट मस्ट बी क्लियर. लाइक अगर हम एडवांस टॉपिक करें तो आई गेस मुझे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. आई अज्यूम दैट एवरीवन इज वेल वर्स्ड विद द प्रोडक्ट. ऑन द एक्सपायरी डे, अगर आपका जो व्यू था, ये हरीश ही एक्सपेक्टेड दिस काउंटर टू गो अप, और उनके व्यू के हिसाब से अगर एक्सपायरी के दिन अगर ये काउंटर ऊपर चला जाता है 110 तक, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा. अभी आपकी व्यू थी बुलिश, उस हिसाब से स्टॉक में तेजी भी आई है. 110 चला गया, जो ₹100 का स्टॉक है 110 चला गया, तो ₹10 इन दी मनी हो गया ये स्ट्राइक. ₹10 जो हम हिंदी मनी बोल रहे हैं ना, तो स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस उतना वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम हो जाएगा ऑन द एक्सपायरी डे. जैसे जैसे मार्केट में तेजी आती है, वैसे वैसे कॉल्स के प्रीमियम बढ़ते जाते हैं. तो जो प्रीमियम जो ₹3 था स्टार्टिंग जब आपने ये बाई किया था स्ट्राइक 100 की, अब वो बढ़ के ₹10 हो जाता है. तो यहाँ पे आपका ₹10 का नेट नेट डिफरेंस जो है वो उसका प्रीमियम है. बट उसमें से आपकी कॉस्टिंग ₹3 थी, वो आप डिडक्ट करेंगे. जो बैलेंस बचा ₹7, दैट विल बी योर प्रॉफिट पर शेयर. तो यहाँ पे आपको ₹7 पर शेयर प्रॉफिट है. अब कॉल ऑप्शन से अगर ये स्टॉक और तेजी करता है, अगर 120 चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. जो कॉल का प्रीमियम 3 था वो अब 20 हो जाएगा. 20 में से ₹3 का आपका कॉस्टिंग है वो डिडक्ट हो जाएगा. ₹17 जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. उधर ये काउंटर 120 चला गया. अब सपोज ये काउंटर नीचे चला जाता है टू 100 से 100 से वो 90 चला गया. अब 10 पॉइंट्स नीचे चला गया, तो आपको कितना लॉस होगा इसमें. अगर आपने कैश में या फ्यूचर्स में सेल किया होता 100 के भाव में, और अगर वो स्टॉक नीचे 90 पे आ जाता है, तो आपको ₹10 का लॉस होता है हर शेयर पे, राइट. बट यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो ऑप्शन जब भी आप बाइंग करते हो, आप कोई भी ऑप्शन को लॉन्ग करते हैं, तो ऑप्शन से जो प्रीमियम है, जितना आपने प्रीमियम भरा है, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता. तो वेदर इज दिस काउंटर इज 10 पॉइंट्स डाउन, बट जो आपका नेट आउटफ्लो था दैट इज ₹3, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा. तो यहाँ पे डिस्पाइट स्टॉक इज डाउन बाय 10 पॉइंट्स, योर मैक्सिमम लॉस विल बी ₹3. इफ इट गोज डाउन 20, लाइक 20 पॉइंट्स और नीचे चला गया, 80 पे चला गया, स्टिल आपका जो लॉस है वो दैट विल बी ₹3. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग इनटू ऑप्शंस. एज अ ऑप्शन बायर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, क्योंकि जैसे जैसे तेजी होती है वैसे वैसे कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे. बट अगर स्टॉक करेक्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो आपका नुकसान जो है दैट विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम विच यू हैव पेड. मेरे स्ट्रैटेजी लॉन्ग पुट है. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हरीश बिलीव्स दैट द स्टॉक प्राइस एबीसी लिमिटेड will decrease in next few session. Now he expects that कि ये स्टॉक करेक्ट होगा कुछ दिनों में. तो उन्होंने फ्यूचर सेल करने से बेटर उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय करना प्रेफर किया. उन्होंने 100 की पुट बाय की है फॉर द प्रीमियम ऑफ ₹4, और ₹4 के प्रीमियम उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय किया. तो पुट ऑप्शंस बाय करना मतलब
आप मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो ये पुट के जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएंगे, राइट। तो अगर एक्सपायरी डे पर एज पर हिज व्यू स्टॉक चला जाता है 90, हम क्या 10 रुपए करें? नीचे चला गया, तो एक पुट कल ऑप्शन जो 4 रुपए पे ट्रेड करा था उसका प्रीमियम अब 10 रुपीज हो जाएगा। स्ट्राइक और स्पॉट का डिफरेंस ले लेंगे तो 10 रुपीज है, 10 रुपीज का पुट का प्रीमियम हो जाएगा, उसमें से 4 रुपए की आपकी कॉस्टिंग थी, वो डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचा दैट विल बी अ। इसी तरह अगर वो और नीचे जाता है तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, बट अपसाइड अगर नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाता है तो ये स्टॉक में आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो 4 रुपए का होगा, उससे ज्यादा नहीं। डिस्पाइट अगर ये स्टॉक 100 से 110 चला जाए, 115 चला जाए, तो भी आपका लॉस विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑफ रुपीज 4। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जो मैंने मिस किया लास्ट स्ट्रैटेजी में। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेर आपको ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। तो अगर आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है 100 का, अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है 100 का 96 चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? इट विल बी जीरो, बिकॉज पुट का जो वैल्यू है वो 4 रुपीज ही रहेगा। 96 गया, तो स्पॉट और स्ट्राइक का डिफरेंस क्या है? 4 रुपीज, और 4 रुपीज तो आपने ऑलरेडी कॉस्टिंग भरी थी ये बाय करने के लिए। So at that level, you will nor make any profit nor any losses. So that is called break even point. तो यहाँ पे 96 का break even point होगा। और इन केस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, जहाँ पे हमने लॉन्ग कॉल किया था, तो 100 के कॉल में आपने 3 रुपीज का प्रीमियम भरा था, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 100 + 3, दैट कम्स टू 103। तो 103 के ऊपर जाने पर ही आपको प्रॉफिट होगा, 103 पे क्लोजिंग आता है तो आपको ना प्रॉफिट ना नुकसान होगा, राइट। आई होप ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो हमने एक बुलिश स्ट्रैटेजी देखी, हमने बेरिश स्ट्रैटेजी देखी। अब ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको लगता है कि तेजी होगी, बट आपको बहुत वन साइड तेजी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ लेवल तक आ सकता है, इफ यू हैव पर्टिकुलर लेवल इन योर माइंड। तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? हम बुल कॉल स्प्रेड करते हैं, विच इज अ मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी। In this, you buy one at the money call option and sell one out of the money call option. तो ये टू लेग स्ट्रैटेजी है, अनलाइक द प्रीवियस वन वेर हमने एक ही स्ट्राइक में ट्रेड किया था। यहाँ पे दो स्ट्राइक्स में आपको ट्रेड करना है। आपको एक स्ट्राइक में एक जो कॉल ऑप्शन बाय करनी है एट दी मनी की, और साथ ही साथ आपको सेल करना है आउट ऑफ द मनी की कॉल की स्ट्राइक। whenever you do this kind of a two leg strategy, there are few things जो आपको ध्यान रखनी है। पहले कि स्ट्राइक प्राइस जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए, जो भी आप स्ट्राइक्स ले रहे हैं वो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिलायंस बाय किया टीसीएस सेल कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी बुल कॉल स्ट्रेटेजी कर रहे हो दैट इज एप्लीकेबल फॉर वन पर्टिकुलर काउंटर। तो आप अगर रिलायंस में करो तो आपका जो एट दी मनी बाय कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हो दैट विल बी सेम स्क्रिप्ट। एक्सपायरी, अब जब एक्सपायरी भी आप सेलेक्ट करो तो आपको सेम एक्सपायरी का में ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आप फेब का सीरीज बाय कर रहे हो मार्च का सेल करना है। एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए, अंडरलाइन सेम होना चाहिए, एक्सपायरी सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करके कि आपने 10 लॉट कॉल ऑप्शन बाय किया है 5 ही सेल कर रहे हैं। जो क्वांटिटी भी में भी आप ट्रेड करोगे वो भी सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजीज करते हैं दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। आपको ये दोनों भी ट्रेड साथ में डालने हैं। ऐसा नहीं करके कि आपने ये अभी डाला बाइंग कर दिया है कॉल ऑप्शन सेल करना है, वो आप रुके हो कि मुझे कुछ लेवल्स में यही लेवल्स पे सेल करो। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। तो स्ट्रैटेजी जब भी आप कर रहे हैं तो हाँ ये इट शुड बी एक्सिक्यूटेड साइमल्टेनियसली। सोना अरविंद के बारे में किन का कमिंग टू एन एग्जाम्पल, अब करे यहाँ पे आप बात देख थी रहे हैं कभी कि वालोरा टाप जी दीना का करे जो हमारा व्यू है दैट इज मदद आगे मॉडरेटली जाए बुलिश, जाओ वी एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर, कदी का बट द एक्सपायरी इज अराउंड द कॉर्नर व्हिच कुड लिमिट द हाँ अपसाइड। अब हमें पता है कि हम जब भी मास एफएनओ में तक ट्रेड बोल कर रहे हैं, रखे इट थे इज हर हाँ सीरीज एक्सपायर होता है। वीवा तो कदी एक्सपायरी कदी है, का हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस का लिमिटेड टाइम में आपको लग रहा है करके कि हाँ ज्यादा अपसाइड नहीं आएगा अरे क्योंकि मैं हमारे पास हारे टाइम देने कम जाए है। लिए तुम तो वो तुम रीजन से हमारा भी पास कभी आओगे तो कभी ऐसा होता है करके कि आप मैं उतने टाइम फ्रेम में इतना ज्यादा आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर करे रहे, कोई तो कोनी आप ये मैं स्ट्रैटेजी हवाला कर पास सकते हैं। आऊंगा जहाँ पे बेनिफिट क्या होता है इस स्ट्रैटेजी का विल डिस्कस इन वंस वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एड़ो तो हम क्या कहो यार सो एट दी मनी तो स्ट्राइक यहाँ पे नीचे अगर मेंशन किया गया कि स्पॉट निफ्टी 18,300 पे, तो एट दी मनी स्ट्राइक हो गया 18,300।
और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक कौन सा रहेगा, जो भी 18,300 की स्ट्राइक के ऊपर होगी वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 18,500 की कॉल को शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप कॉल जब बाय कर रहे हो उसके लिए आप प्रीमियम भर रहे हो 100 रुपीज, और आप सेल करोगे उसमें आपको प्रीमियम इनफ्लो है जहाँ पे आपको 50 रुपीज आपका वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो आपका इनफ्लो है। तो जब भी आपको नेट कॉस्टिंग निकालनी है तब क्या होगा, आपको 100 - 50 करना था, 50 रुपीज की ही आपकी कॉस्टिंग है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। आप बुलिश ट्रेड तो कर रहे हैं बट आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है, आपका जो इधर प्रॉफिट पोटेंशियल है वो तो लिमिट होता है, बट इधर लॉसेस भी लिमिटेड रहते हैं। तो इधर प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड रहते हैं, बट ये बेनिफिट होता है कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है जिसके कारण आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे आ जाता है। ये स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल क्या होगा, जो दोनों भी स्ट्राइक लिए हैं उस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 18,500 18,300 डिफरेंस हो गया 200 पॉइंट्स। उसमें से आपकी जो कॉस्टिंग थी वो 50 रुपए, वो आप डिडक्ट करेंगे। तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा दैट इज 200 - 50, दैट कम्स टू 150। तो 150 विल बी योर मैक्सिमम प्रॉफिट even the stock goes at whatever levels above 18,500। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 18,500 पे लेवल पे आएगा, बट इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो टाइप को सेल किया है। तो आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है, प्रॉफिट पोटेंशियल, दैट इज कैप्ड। बट हम ये स्ट्रैटेजी क्यों करते हैं, ताकि आपको लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं है, तब आप ये स्ट्रैटेजी करते हैं। मैक्सिमम लॉस क्या होगा इसमें, जो आपका नेट प्रीमियम आउटफ्लो है वो आपका मैक्सिमम लॉस है अगर स्टॉक नीचे जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हमने लॉन्ग कॉल में ब्रेक इवन पॉइंट लिखा था उसी तरह यहाँ पे भी करना है हमें। एट दी मनी स्ट्राइक में नेट प्रीमियम ऐड करना है। तो एट दी मनी स्ट्राइक वाज 18,300 प्लस 50, तो 18,350 बिकम्स योर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बॉय किया होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, आपने अगर एट दी मनी 18,300 की 100 रुपए के प्रीमियम में बाई किया होता तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता 18,300 प्लस 100, दैट वुड बी 18,400। तो अगर आपको प्रॉफिट आना है इस स्ट्रैटेजी में तो आपको 18,400 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको भी एट दी मनी की पुट बाई करनी है, साथ में आउट ऑफ दी मनी की पुट सेल करनी है। जो हमने चीजें डिस्कस की लास्ट स्ट्रैटेजी में कि कुछ चीजें आपको जो टू लेग स्ट्रैटेजीज करते तो ध्यान रखें, वो चीज आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगी, बट वो सारी चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल है बिकॉज इट इज अ टू लेग स्ट्रैटेजी। Your outlook is moderately bullish. You expect market to go down, but expiry is around the corner, which could limit the downside. पिक यहाँ ऑफ पे होगी एक्सपायरी वो तो पास क्या में है, बात इसकी वजह से आप ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं है। आपको लग पिक रहा है ऑफ कि वो इस लेवल मेन तक है यहाँ से करेक्शन आ सकता है। Amansiando como स्पॉट निफ्टी इज 18,300, तो आप एट दी मनी की अच्छी स्ट्राइक बाय करेंगे तो एट दी मनी विल बी इसलिए 18,300 का बरस पुट, बैठे और आउट ऑफ द मनी लेना है तो यहाँ पे क्या 18,100 की हाँ पुट को शॉर्ट किया गया है। तो आपने प्रीमियम भरा है कौन सा 150, वाला उसमें से नेट प्रीमियम आपको आपको जो प्रीमियम आया है इनफ्लो है दैट इज 90। सो आपकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 60, 150 - 90 दैट कम्स टू 60। 60 की आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग है। वेट लॉस करो मेरे को बेटा कन्नो की मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको स्ट्रैटेजी में क्या होगा, दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस दैट इज 200 पॉइंट्स माइनस 60, that comes to 140. So 140 is your maximum profit in this particular strategy. Despite stock 18,100 के नीचे चला जाता है तभी भी आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो विल बी लिमिटेड टू 140 रुपीज। मैक्सिमम लॉस क्या होगा, जो आपका नेट आउटफ्लो है वही मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे 60 रुपए का जो है नेट आउटफ्लो था आपका, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा अगर ये काउंटर ऊपर चला जाता लास्ट है टाइम तो। पता तो कुछ याद है ब्रेक 68 इवन 68 पॉइंट क्या होगा, आपको एट दी मनी में माइनस करना है नेट आउटफ्लो। तो 68 तो होना लास्ट टाइम याद है 18,300 मेरे को minus कैसे 60, that comes to 18,240, that comes your break even point over 68 here। पॉइंट फॉस के जी तो हमने हाँ चार स्ट्रैटेजीज देखे, हमने दो बुलिश स्ट्रैटेजी देखे। वन वाज लॉन्ग कॉल, सेकंड वन वाज बुल कॉल स्प्रेड व्हिच वाज अ मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी। यहाँ पे फिर दूसरी स्ट्रैटेजी हमने किया बेरिश स्ट्रैटेजी व्हिच वाज लॉन्ग पुट, मोजे और थे मॉडरेटली सर्टिफिकेट बेरिश दिख रहे हो स्ट्रैटेजी विजन किया पे व्हिच इज निजाम बेयर कहने पुट को रही स्प्रेड। है को तो हमने हाँ चार स्ट्रैटेजीज कवर किया है।
कमिंग टू नेक्स्ट वन, अब ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आपको कभी कभी लगता है कि मार्केट में बहुत वन डायरेक्शनल मूव आएगा कि कुछ आउटकम है, कुछ समथिंग, कुछ न्यूज आने वाला है या बजट आने वाला है, आपको नहीं पता कि क्या आएगा, बट आपको ये लग रहा है कि वन साइड की मूव आ सकती है, यू आर नॉट श्योर ऑन द डायरेक्शन बट आपको मोमेंटम लग रहा है वन साइड। तो वैसे में आप एक स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जिसे कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। आपका इधर प्रॉफिट या लॉस किस तरफ जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है करके कि वो किधर भी जाए बट मोमेंटम शार्प रहने चाहिए, तब आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। तो 57.3। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एट दी मनी की कॉल और पुट दोनों भी बाई करते हैं। अब दिस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट। जब हमने लॉन्ग कॉल और हाय लॉन्ग बात पुट है क्या भाई, देखा मुझे था, वही मुझे का बोल रहा कॉम्बिनेशन है ये। हाँ हाई बात है। बंद की थोड़ा। यहाँ पे आपका आउटलुक क्या है, यू एक्सपेक्ट डायरेक्शनल मूव इन इन द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शनल मूव लग रहा है बट यू आर नॉट श्योर ऑन द डायरेक्शन। सही बोलते हैं ये लोग। स्पॉट निफ्टी 18,300 पे है, तो आप एट दी मनी की कॉल आप पुट दोनों को अरे बाय जो कर रहे हैं बतलाइन यहाँ पे। करनो गया तो अपने तो 18,300 की कॉल आप बाय कर रहे हैं फॉर द प्रीमियम ऑफ रुपीज 100 और मैंने 18,300 की पुट बाय कर रहे हैं फॉर द प्रीमियम ऑफ रुपीज 140। तो टोटल आउटफ्लो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि आप दोनों भी साइड में बाइंग करें। लास्ट दो स्ट्रैटेजीज हमने की करनो नहीं उसमें आप भिंडी आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों भी स्ट्राइक में लॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका जो नेट एक आउटफ्लो है बतली के उसके लिए आपको मुझको दोनों को एकला को ऐड रे करना पड़ेगा, गता दोनों में सोटा में आपको तो घर तो प्रीमियम भरना हाँ है। हाँ खणा माथी तो यहाँ पे आपका जो पूरा टोटल हाँ आउटफ्लो विल बी और क्या 240, अंदर एक बार बीवार एडिंग खाली बोथ करे दी हाँ प्रीमियम्स। हाँ अच्छा ठीक है मैक्सिमम प्रॉफिट पॉज पोटेंशियल करी इज पछी जो अनलिमिटेड। कलेक्शन बीजू करे करा जिधर भी जो पहला साइड में कलेक्शन मूव करे आते जाएगा पहला वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम लॉस इज द प्रीमियम विच यू हैव पेड। आपने थोड़े प्रीमियम टू घने फोर्टी डायरी भाई रुपीज भरा है बन के तो वो था आपका था मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ब्रेक इवन, बिकॉज वी आर डूइंग टू लाइक स्ट्रैटेजी, एक कॉल है एक पुट है, तो यहाँ पे आपको दो ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे। फर्स्ट इज अपर ब्रेक इवन पॉइंट विच इज एट दी मनी प्लस नेट प्रीमियम। तो एट दी मनी स्ट्राइक जो हमने बाई की 18,300 प्लस 240 दैट कम्स टू हाँ 18,540, तो अच्छा विच इज एन अपर ब्रेक इवन पॉइंट, और लोअर कैसे रुपए ब्रेक भाई इवन पॉइंट इज 18,300 minus 240 that देखा comes to ले 18,060। तो ये जो रेंज है इसके थोड़ा एक काम ऊपर करना या थेला इसके और नीचे आप वॉकिंग एक्सपेक्ट कर करने रहे हो जा कि रहा हूँ निफ्टी मूव करेगा, तभी ही आप ये स्ट्रैटेजी करें। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, जब भी आप ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, पॉज इस ना तरह जा के रही आप टोटल प्रीमियम ले, ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, आपको लग रहा है कि ये रेंज के बाहर की मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी ही आप ये स्ट्रैटेजी करें, नहीं तो अवॉइड करें। इसके अलावा आप ये भी देखेगा कि एकदम हाई आईवीज पे आप ये स्ट्रैटेजी ना करें, बिकॉज आप एकदम हाई आईवीज पे आपने किया मतलब प्रीमियम एक्सपेंसिव रहेंगे। यो उस एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रीमियम में आप जब बाइंग करेंगे और बिकॉज इवेंट खत्म होने के आसपास या इसके बाद अगर आप देखिए आईवीज को हमें पुल गले ऑफ की नहीं होते हुए दिखा देखेंगे तो डिस्पाइट स्टॉक में कोई खास मूव नहीं है, प्रीमियम घट जाएंगे और आपको लॉस आखिरी होना वाला शुरू हो जाएगा। साइकिल महंगी बेच दी क्या आप तुम लॉस, कर रहे आपको पीछे लॉस होगा इन दैट केस। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे स्ट्रैटेजीज करें, दोनों साइकिल भी ले स्ट्राइक आप महंगी बाय करके चल रहे हैं, तो प्रीमियम जो आईवीज है वो बहुत ही ऊपर ना रहे, और तो मस्त थी नीचे साइकिल रहे, या ओवरऑल एक रेंज में आप नीचे की तरफ है तो इंडेक्स ट्रेड करेगा, तब आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे, स्पॉट निफ्टी 18,300 पे है, आप एट दी मनी की कॉल और पुट यहाँ पे दोनों को सेल करते हैं। प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में आप बाय कर रहे थे, यहाँ पे आपको दोनों भी सेल कर रहे हो, तो जो भी आप सेल कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम आ रहा है, तो टोटल प्रीमियम जो भी है ये आपको नेट प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे 100 प्लस 140 दैट इज 240 इज योर नेट इनफ्लो, राइट। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई भी चीज बेचते हैं 100 रुपए पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको जीरो फ्री में उठाएंगे, उससे ज्यादा तो आप नहीं बाय कर सकते, उससे कम में तो 100 इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर आप जब भी रहते हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम विच यू आर सेलिंग, एट व्हाट प्रीमियम यू आर सेलिंग दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने जो दोनों स्ट्राइक सेल किया है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी द प्रीमियम विच यू एट व्हाट यू हैव सोल्ड, दैट इज 240 ओवर ईयर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 240, मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। अगर ये स्टॉक में आप एक्सपेक्ट करते हैं रेंज वन, बट इसमें एक शार्प मूव आ गई, तो आपको लॉसेस बढ़ते जाएंगे, एंड जैसे जैसे स्टॉक चलता जाएगा वैसे आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि लॉसेस अनलिमिटेड है। अपर प्राइस बैंड, अगेन जो प्राइस बैंड हमने ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने पिछले स्ट्रैटेजीज में देखी थी वही चीज है यहाँ पे। तो इसे कहेंगे प्राइस बैंड, जहाँ पे ये आपको एक रेंज बताता है। तो यहाँ पे आप रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो
18,540, 18,060, ये रेंज है। अगर आप ये रेंज के अंदर ही एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम रहेगा तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल करें। अगर आपको लग रहा है कि इससे ऊपर मूव आ सकता है तो आप अवॉइड करें। Anche di si archivare. आप ऑप्शन राइटर हो तब आप हाई प्रीमियम्स में सेल करके चलोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, Iniziare agli orari. क्योंकि स्टॉक में अगर एवरीडे आपसे फोल्ड भी करते हैं, मार्केट में मूव नहीं भी आता है, तभी भी प्रीमियम एवरीडे इरोड होएगा, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। प्लस अगर आपने हाई आईवीज पे सेल किया है तो आईवीज कूल ऑफ होंगे तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉफिट्स आएंगे। Porca, hadi morte तो nella stessa. दैट कैन गिव यू एन Comunque एडवांटेज इन veramente टू वे, डबल walk साइड से io आपको non mi एडवांटेज हो chiamo जाएगा। con non dormire तो ये था हमारा लास्ट स्ट्रैटेजी। अरे माँ गैस वाला वो एक ऑन करो। io pure stava di poco अब आप स्पेशली एक्सपायरी डे के लिए ट्रेड करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि allora आप non किस è तरह से ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस मार्केट हमें ट्रैक करनी है, वो काफी आपको हेल्प बहुत करेगा। अगर आप फेक कोई लग रही है स्ट्रैटेजीज कि करें नहीं। या ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो डेटा एनालिसिस करने के ऊपर भी कुछ कुछ वेबिनार्स है, आप उसे अटेंड करें। आप एफ की पोजिशन ट्रैक करें, एफ क्या करें, बिकॉज उनके पोजिशनिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। और उससे अगर आप ट्रैक करें तो आपको ओवरऑल आइडिया है कि वो लोग कैसे क्या Lina एक्सपेक्ट कर रहे हैं। di voti. एक रिकैप कर लेंगे जो स्ट्रैटेजीज हमने किया। बुलिश स्ट्रैटेजी विच इज लॉन्ग कॉल, यहाँ पे आपको नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। लॉन्ग पुट, नेकेड पुट ऑप्शन बाय करेंगे उसे कहेंगे लॉन्ग पुट। बेरिश है, आपको लग रहा है वन साइड करेक्शन आएगा तो आप लॉन्ग पुट कर सकते हैं। Io आपका sei मॉडरेटली बुलिश व्यू है तो आप hai बुल tu. कॉल स्प्रेड करें, मॉडरेटली बेरिश व्यू है तो आप बेर पुट स्प्रेड करें। रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट तो शॉर्ट स्ट्रैडल करें, और आप मार्केट में वन साइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लॉन्ग स्ट्रैडल करें। These were all six strategies which we discussed. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजीज which we have discussed तो आप अभी हमें पोस्ट कर सकते हैं। टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आई प्रिज्यूम कि आप बहुत न्यू हैं, आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पर अभी हैं इनटू ऑप्शंस। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले तो ऑप्शंस क्या है उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए वेबिनार अटेंड करें। उसके लिए भी वी हैव वेबिनार लाइक ऑप्शंस इन डिटेल, कैसे कोई वेबिनार रहेंगे तो आप उसको एनरोल करें तभी आपको समझेगा। सीई स्टैंड्स फॉर कॉल एंड पीई स्टैंड्स फॉर पुट। तो सीई अगर आप कहीं भी देखते हैं कि बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, आप रिलायंस का थाउजेंड का सीई का स्ट्राइक बाय करो तो थाउजेंड का कॉल हो गया। जब भी आप सीई देख रहे हैं दैट इज कॉल एंड पीई देख रहे हैं तो दैट इज पुट ऑप्शन। समवन वाज आस्किंग दैट आल्सो। Troviamo io. बीजू का आवाज प्रपोजल बीजू को लाइन है समवन इज आस्किंग हाउ डू वी गेट टू नो मारो है कि प्राइस अरे अप मारो। होने Hari na khalo होंगे io या inizio con. डाउन। अभी सी दिस इज Inda अगेन अ vai व्यू, hai लाइक cosa आप io. अगर अपने अबे रिसर्चेस नहीं करते हैं, होता भाई। आपका कोई व्यू है ये तो मारो उसके ऊपर बात किया गया। मारो भी तो तो गिरा। वंस यू गेट लाइक आप थोड़ा मार्केट में तब ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने करेगा खुद की लेडियो। रिसर्च करें तो आपको थोड़ा Cara, इससे ये हेल्प हो कावड़े जाता रे है। पूजा। guarda che vai le ne ere vai. Mala da bi le ere vai io. Che alla da me was कि non आई da non अज्यूम da लाइक अगर आप पहली बार ये स्ट्रैटेजीज के बारे में सुन रहे हैं तो io dico ऑफकोर्स वन mia io. लेक्चर्स ये फर्स्ट Mo sei एक tu che वेबिनार vai से आपको tu che पूरा sei आ tu जाएगा ऐसा che नहीं io है। poi devo. आपको इसके लिए और रीडिंग करनी पड़ेगी। Ah oui. स्ट्रैटेजीज के लिए एनएससी की साइट पर आपको स्ट्रैटेजी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी बुक्स है, तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स स्ट्रैटेजीज वहाँ पे मिल जाएंगे। बट एक्चुअली का कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप जैसे आप कुछ व्यू फॉर्म कर रहे हैं, आप वो स्ट्रैटेजी को लिखे, उसके प्रीमियम्स को कौन से लेवल पे बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं वो लिखे। बुक में जो ट्रेडिंग करते हैं हम बोलते हैं उस तरह की आप स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करें तभी आपको इसका ओवरऑल समझेगा। बिकॉज इसका पे ऑफ इतना इजी नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को। तो इट विल नॉट हैपन इन अ सिंगल वेबिनार, you need to practice it, then only you will get a hang on it. It is not a very simple topic, बहुत टाइम लगता है भरपूर पुराणों का है गूगल में भी ढूंढ ऑप्शंस सकते को हो समझने के लिए। E una base अ, di base. आप बहुत वेबसाइट पे ही अगर गूगल पे ही डालेंगे कि बहुत किस्म है डेरिवेटिव बहुत किस्म है स्ट्रैटेजीज तो आपको काफी सारे वहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये यही स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, यू कैन रेफर दोस। आस्किंग कैन यू शो दी फर्स्ट स्लाइड, हमारे यहाँ पालन अपन दिस हमारे वाज द यहाँ कहाँ फर्स्ट होता है स्लाइड। Guarda la che a dette vai. हमारे तो Sì सही आ è जाता है che भले करो सेव Someone is asking for the numbers. 900 You can contact the advisory if these guys are can help you वन out, सेवन
नॉर्मली सारे कॉल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वी ऑल्सो हैव अ डेरिवेटिव रिलेटेड, अगर कोई प्रोडक्ट के लिए आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी कुछ टीम्स है, तो आप उधर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बात एक तो कर सकते नहीं नाइन हो डबल गए जीरो भैया। 17। हैं। आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं लगता है, इन दैट केस आपको बस एफ एक्टिवेट करवाना रहेगा। वो चीज़ आप अपने सब ब्रोकर से बात करें, दैट वे ऑर्डर्स के रिलेटेड भी आपको सब जानना है, तो आई थिंक जो कंप्लाइंस टीम हो गया, वो सब टीम्स आपको हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मतलब लाइक आपको अगर जो वेबिनार में हमने कंडक्ट किया है, जो स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज उसके लिए क्वेश्चंस करें, आई विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर दैट। बट अगर आपको कुछ जैसे आपको बास्केट ट्रेडिंग करनी है, आपको ग्रुप में कैसे डालना है, वो सब चीजें आप अपने सब ब्रोकर्स के थ्रू आप जान पाए। तो इंट्राडे के लिए भी है देयर इज स्ट्रैटेजी, लाइक अगर आप कभी आपका ओवरऑल व्यू क्या है, जैसे आपका व्यू कैन बी इंट्राडे ऑल्सो, इट कैन बी फॉर अ वीक ऑल्सो, इट कैन बी फॉर अ मंथ ऑल्सो। आपको निफ्टी लगता है आज के दिन कुछ मूव नहीं करेगा तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल आज के दिन भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ प्रीमियम खाने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि इंट्राडे के लिए आप यही स्पेसिफिक करें, या ऐसे मार्केट के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो आप यही स्ट्रैटेजी करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यू, मार्केट कैसा है, आपका व्यू क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, आप अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करना है। So we have tried covering as many topic, as many questions we could. So अभी के लिए we can wind up the session. Thank you everyone. Thank you for so much questions. I assume that आपने जो भी हमें डिस्कस किया that would have helped you. But I would suggest अगर आपको डेली रिपोर्ट्स जैसे आपको स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्ट है तो कीप रीडिंग more stuff, do book trading, that will help you out. Don't go and initially start reading before having a proper knowledge. अगर आपको डेली क्या व्यू है, ये सब चीजें रीड करना है तो आप डेली रिपोर्ट्स को रेफर करें, जहाँ पे हम हमारा क्या व्यू है ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो उधर आपको व्यू में हम किस तरह से एनालिसिस करके क्या व्यू है हम मेंशन करते हैं। उधर आपको ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप्स भी दिखते हैं, ओपन इंटरेस्ट गेनर्स लूजर्स वो सब भी डिटेल्स रहता है, एफआईस का डेटा रहता है। तो काफी सारे कंटेंट आपको डेली रिपोर्ट्स में मिल जाएंगे। You can prefer you can just opt for reading it once every day, so that आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे। So for now we can wind up this session. Thank you everyone, thank you for joining us. Stay safe.